تعلیمی ادارے بند نہیں ہوں گے، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے، جتنے نمبر اختیاری مضامین میں لیے اتنے ہی لازمی مضامین کے ہوں گے۔ وزرائے تعلیم کانفرنس میں بڑا فیصلہ، تعلیمی اداروں میں طلباء کی نصف حاضری ضروری، نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں کے ٹیچنگ سٹاف کے لیے ویکسینیشن لازم قرار دے دی گئی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں بچوں کی صحت اور تعلیم کا خیال رکھا جائے گا۔ آئندہ اجلاس 25 اگست کو طلب کر دیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہوئی۔ صوبائی وزرائے تعلیم نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے، امتحانات بھی شیڈول کے مطابق ہوں گے، 50% حاضری کے SOPs پر عمل درآمد کیا جائے گا، 18 سال سے زائد عمر کے طلباء کی ویکسینیشن کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ویکسینیشن نہ کروانے والے اساتذہ اور سٹاف کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب طبی ماہرین نے سکولز کھلنے سے کورونا کے پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور 14 سال کے بچوں کی ویکسینیشن پر بھی زور دیا ہے۔ ایج لمٹ جو کہ 18 سال پہ گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے، اس کو ہر صورت میں نیچے 14 سال پہ لانا چاہیے۔ یہ تو بالکل دنیا میں ساری جگہ اب 14 سال پہ لگ رہی ہے، تو ہمیں بھی 14 سال اپنی لمٹ کو نیچے لانا چاہیے تاکہ یہ بچے ویکسینیٹ ہوں اور پھر سکول جائیں۔ NCOC کے تحت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا آئندہ اجلاس 25 اگست کو ہوگا، جس میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی، شہر میں 455 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ کورونا وائرس میں مبتلا مزید 5 افراد جان سے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 6% کو چھو گئی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی جاری ہے، شہر میں 455 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ کورونا وائرس میں مبتلا مزید 5 افراد جان سے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 6% کو چھو گئی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات، لاہور سمیت پنجاب بھر کے مزارات پھر بند کر دیے گئے۔ داتا دربار مادھو لال حسین، دربار پی پی باغ دامن شامل ہیں۔ مزار 31 اگست تک بند رہیں گے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے مزارات پھر بند کر دیے گئے۔ داتا دربار مادھو لال حسین، دربار بی بی پاک دامن شامل ہیں، جبکہ مزار 31 اگست تک بند رہیں گے۔ اسکول ایجوکیشن اتھارٹی کی نااہلی، سینکڑوں اساتذہ کی ویکسینیشن نہ ہو سکی۔ 1800 ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف باقی ہے۔ ویکسینیشن کے لیے 21 اگست کی ڈیڈ لائن۔ سٹاف کو سرٹیفکیٹ کے بغیر اسکول داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لاہور میں ٹیچنگ سٹاف کی تعداد 16,000 اور نان ٹیچنگ سٹاف کی 4,000 ہے۔ حکومت نے اب اساتذہ کو ویکسینیشن مکمل کرانے کے لیے 15 اگست کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اسکول سربراہان 16 اگست تک تمام سٹاف کی ویکسینیشن مکمل ہونے کی رپورٹ اتھارٹیز کو جمع کروائیں گے۔ احکامات کی خلاف ورزی پر متعلقہ اسکول سربراہان ذمہ دار ہوں گے۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق زیادہ تر سٹاف کی ویکسینیشن کروائی جا چکی ہے۔ دل کے مرض یا دیگر بیماریوں میں مبتلا اساتذہ کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، جو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ محکمہ صحت کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اپنے ہی پلانٹ لگانے کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے آکسیجن جنریٹر، آکسیجن کنسنٹریٹرز خریدنے کا ٹینڈر منسوخ کر دیا۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے 10 آکسیجن جنریٹر، 200 آکسیجن کنسنٹریٹر خریدے جانا تھے۔ محکمہ صحت کو آکسیجن کی ایک جانب ضرورت ہے، دوسری جانب اپنے ہی پلانٹ لگانے کا منصوبہ ٹھپ کر گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے آکسیجن جنریٹر اور آکسیجن کنسنٹریٹر خریدنے کا ٹینڈر منسوخ کر دیا، جبکہ ٹیچنگ ہسپتالوں کے لیے 10 آکسیجن جنریٹر، 200 آکسیجن کنسنٹریٹر خریدنا تھے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر کچھ بھی سستا نہ رہا۔ گھی اور خوردنی تیل کی قیمت 35 روپے تک بڑھ گئی۔ بچوں کا خشک دودھ 40 روپے مہنگا۔ سرف، شیمپو اور صابن کے دام بھی بڑھ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں برائلر گوشت ڈبل سینچری پر ناٹ آؤٹ۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافے کا رجحان ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز عوام کو ریلیف دینے کے لیے بنائے گئے، لیکن اب یہ بھی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ حکومت آٹا، چینی اور سستے گھی پر سبسڈی پہلے ہی ختم کر چکی ہے۔ اب مختلف برانڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت 35 روپے تک بڑھ گئی ہے۔ بچوں کا خشک دودھ 10 سے 40 روپے تک مہنگا کر دیا گیا۔ شیمپو کی بوتل 4 سے 20 روپے اور صرف 20 سے 45 روپے تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ مختلف برانڈز کا نہانے کا صابن بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب برائلر گوشت کی قیمت 9 روپے اضافے سے 203 روپے تک جا پہنچی ہے۔ 2 دن میں چکن کی قیمت میں 20 روپے اضافہ ہوا ہے۔
सब्जियों की कीमतों में भी इजाफे का रुझान है। प्याज 50, टमाटर 60 और 70 रुपए किलो फरोख्त किए गए। कद्दू 120 रुपए और शिमला मिर्च की कीमत 100 रुपए से जायद वसूल की गई। करेले, भिंडी, तोरी और बंद गोभी की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। हंजरवाल से 5 रोज कबल अगवा होने वाली 4 लड़कियां साहिवाल से बाजियाब हो गईं। अनम, कनीज़ा, आयशा और समरीन ने वालिदैन की डांट डपट पर घर छोड़ा। कमसिन बच्चियों को रिक्शा ड्राइवर बहला फुसला कर साहिवाल ले गया और साथी की मदद से फ़रोख्त कर दिया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई से मरकजी मुलजिम और साथियों को गिरफ्तार कर लिया। घर जाने से इनकार पर बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दे दिया गया। हंजरवाल की रहायशी 4 बच्चियां मामूली नाराजगी की भारी कीमत चुकाने से बच गईं। अनम, किंजा, आयशा और समरीन ने 30 जुलाई को वालिदैन की डांट डपट पर घर छोड़ा। 10 से 14 साल की कमसिन बच्चियां ऑरेंज लाइन ट्रेन पर गुलशन राबी गईं। वहां से रिक्शा ड्राइवर कासिम उन्हें बहला फुसला कर साहिवाल ले गया और साथी शहजाद की मदद से उन्हें फरोख्त कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चियों को अगवा करने वाला रिक्शा ड्राइवर कासिम साहिवाल का रिहायशी है। उसके साथियों शहजाद, नईम, आसिफ, शौकत, शाजिया और जीनत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहल्ला नंबरदारा से जो 4 बच्चियां हमारी मिसिंग थीं और उसमें हमारा पर्चा भी हुआ था, तो वो बच्चियां जो है वो बाजियाब करा ली गई हैं। ये प्रॉब्ली खुद गई थी, लेकिन उसकी फर्दर डिटेल्स उस वक्त क्लियर हो जाएंगी जब वो बच्चियां वापस आएंगी। बच्चियों ने बाजियाबी के बाद अपने घरों को जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दे दिया गया। मेरी डीआईजी ऑपरेशंस साजिद कियानी साहब से बात हुई है और ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो बच्चियां अपने लवाहिकीन फैमिली के पास नहीं वापस जाना चाहती, प्रॉबेबली क्योंकि वो वहाँ पर अपने आप को महफूज नहीं समझती। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की लीगल टीम अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही है। मैंने उनको भी कहा है डीआईजी ऑपरेशंस को कि बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए। कमसिन बच्चियों का इस तरह घर छोड़कर जाना लम्हाए फिक्रिया है। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए रवैयों में बेहतरी की जरूरत है। इरफान मलिक, सिटी 42। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को सिटी 42 का सलाम। यौम शहदाए पुलिस पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। आईजी पंजाब इनाम गनी का कहना है, जिन शहीदों ने अपना आज कुर्बान करके हमारा कल महफूज बनाया, उनका खून जाएगा नहीं जाएगा। यौम शहदाए पुलिस पर आईजी इनाम गनी ने यादगार शहदा मॉल रोड पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। आईजी पंजाब ने शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। हम उनकी फैमिलीज के साथ हैं, ना सिर्फ यौम शहदा पे या इस दिन के वसातत से, बल्कि हम सारा साल उनके साथ होते हैं। ट्रैफिक पुलिस लाइन्स मनावा में शहदा के लिए फातिहा ख्वानी का एहतमाम किया गया। सीटीओ लाहौर मुंतजिर मेहदी ने कहा कि सैयद अहमद मुबीन शहीद ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी दी। शहीद वार्डन तनवीर इकबाल ने गैर मुल्की मेहमानों की हिफाजत करते हुए जान का नजराना पेश किया। पुलिस फोर्स आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेगी। पुलिस के शहादा को सलाम। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की खबर पर पुलिस अफसरान की हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस फोर्स ने सलामी पेश की। शहीद की वालिदा ने भी बेटे को फूलों भरा सलाम पेश किया। लाहौर पुलिस ने अपने शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर, सीटीओ डीआईजी ऑपरेशंस ने कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। लाहौर पुलिस के 320 जवान फराइज की अदायगी के दौरान जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, तो ये जो हम लोग गलियों में मोहल्लों में जो हम आज़ाद घूम रहे हैं, ये सारा का सारा इन्हीं शोधा के लहू की बदौलत है कि इन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस अमन को कायम रखने के लिए इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की मौमर वालदा ने भी बेटे की कब्र को फूलों से मुअत्तर किया और यादें ताज़ा की। जिस तरह उनके महकने वालों ने और दुनिया ने जिनकी इज्जत की है, उसकी हर बात को सहा है। अल्लाह ताला तो अपने हबीब के सिलसिले में इसी तरीके से औरों को भी तौफीक दे के इसी तरह अपनी मुलाजमत के दौरान जो परेशानियाँ आती हैं उनको हिम्मत होकर उसको कबूल करें, दुश्मनों के छर से बचाए हमें अपने हबीब के सदक़े में। अल्लाह ताला सबके बच्चों की खैर। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन ने फरवरी 2017 को माल रोड पर फराइज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। पुलिस अफसरान के मुताबिक उन्हें अपने शहदा की लाजवाल कुर्बानी पर फख्र है। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है, रिटायरमेंट के साथ इंश्योरेंस भी मिलेगी। महकमा खजाना ने समरी वजीर आला को भिजवा दी।
हुकूमत पंजाब ने सूबे में सरकारी मुलाजमीन की इंश्योरेंस पॉलिसी तब्दील करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से मुलाजमीन के लिए KP के तर्ज की इंश्योरेंस पॉलिसी लाने पर गौर किया जा रहा है। इससे कबल सिर्फ फौत होने की सूरत में इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम मिलती थी। अब पंजाब हुकूमत ने रिटायर्ड होने पर मुनाफे के साथ इंश्योरेंस की रकम मुलाजमीन को देने का फैसला किया। महकमा खजाना ने ये समरी इरसाल कर दी है। महकमा रेगुलेशन ने पंजाब में भी KP के तर्ज की मुलाजमीन की इंश्योरेंस पॉलिसी लाने की राय दी है। महकमा रेगुलेशन ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ये पॉलिसी तब्दील करने की राय दी। हुकूमत पंजाब की सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पर नवाजिशें वाल्टन एयरपोर्ट की 70 एकड़ अराजी 30 साल लीज पर अलॉट कर दी। वाल्टन एयरपोर्ट की जगह पर बिजनेस हब बनाया जा रहा है, जिसके लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बनाई गई है। पंजाब हुकूमत ने 70 एकड़ कीमती अराजी 30 साल लीज पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को मुंतकिल कर दी है। अराजी मुनाफा शेयरिंग की बुनियाद पर दी गई है, जिसमें हुकूमत का शेयर 54.4% रखा गया है। बिजनेस अथॉरिटी माली साल खत्म होने से कबल हुकूमती शेयर अदा करने की पाबंद होगी। अराजी की लीज से मुतालिक तमाम उमूर के ऑडिट का इख्तियार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगा। इधर लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को वाल्टन एयरपोर्ट के इतराफ अराजी की नीलामी से रोक दिया है। हाई कोर्ट में शहरी इस्माइल समेत दीगर की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि शहरियों की 176 केनाल अराजी को सरकारी अराजी डिक्लेयर किया जा रहा है, जबकि शहरियों के पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। हुकूमत गैर कानूनी तौर पर जमीनों को नीलाम करना चाहती है। अदालत ने कार्रवाई करते हुए इंतजामिया को दरख्वास्त के हतमी फैसले तक नीलामी से रोक दिया। अल्लाहू गोल चक्कर ख़त्म करने का फैसला, 2 रोज़ा सड़क निकाली जाएगी। LDA ने 9 करोड़ 60 लाख का टेंडर फाइनल कर दिया। LDA ने अल्लाहू गोल चक्कर, शौक चौक से शौकत खानू फ्लाईओवर, खयाबान फिरदौसी रूट की मॉडलिंग के प्रोजेक्ट पर फौरी काम शुरू करने का फैसला किया। अल्लाहू गोल चक्कर को खत्म करके 2 रोज़ा सड़क निकाली जाएगी। अल्लाहू गोल चक्कर से कबल और बाद में 2 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए जाएंगे। मंसूबे के मुताबिक महमूद चौक, जगावर चौक, शादीवाल चौक की रीमॉडलिंग होगी। सिग्नल्स भी लगाए जाएंगे। LDA ने मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट मैसर्स कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग को दे दिया। LDA इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक मंसूबा 60 रोज में मुकम्मल किया जाएगा। DG LDA अहमद अजीज तारड़ का कहना है मंसूबे से रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। मंसूबा खयाबान फिरदौसी की ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाएगा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, हुकूमत की तैयारियां नामुकम्मल। हिफाजती बंद के लिए पत्थरों की कमी का इंकशाफ। लाहौर जोन में हिफाजती बंद के लिए 90 लाख स्क्वायर फीट पत्थरों की ज़रूरत है। 63 लाख स्क्वायर फीट पत्थर लाजिम करार, जबकि महकमा आपाशी के पास सिर्फ 37 लाख स्क्वायर फीट पत्थर मौजूद हैं। मॉल रोड और लोअर मॉल ब्लॉक करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब का हुक्म, कार्रवाइयों की रिपोर्ट्स बाकायदगी से CPO भिजवाई जाएं। मॉल रोड और लोअर मॉल पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए IG पंजाब ने CCPO लाहौर को मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुरासले में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 2017 से मॉल रोड को रेड जोन करार दे रखा है। आए रोज मुजाहिरों से फैसल चौक, गवर्नर हाउस और लोअर मॉल सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने ट्रैफिक ब्लॉक रहना शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ताखीर न की जाए। अगर मुजाहिरीन सरकारी मुलाजिम हैं तो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए मुतालिका महकमों को खतूत लिखे जाएं। सरकारी मुलाजमीन को मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज की बजाय अपने अफसरान के सामने मसाइल रखने चाहिए। पंजाब के 7 सेक्टरीज के लिए कुर्सियां खाली हैं। सेक्रेटरी एनर्जी, स्पेशल एजुकेशन, पॉपुलेशन और सेक्रेटरी हाउसिंग की आसामियां खाली। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर न होने से दफ्तरी अमूर मुतासर होने लगे। पंजाब के 7 सेक्टरीज के लिए कुर्सियां खाली हैं। सेक्रेटरी एनर्जी, स्पेशल एजुकेशन, पॉपुलेशन और सेक्रेटरी हाउसिंग की आसामियां खाली हैं, जबकि सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर ना होने से दफ्तरी अमूर मुतासर होने लगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फिर नैब के रेडार पर, सरकारी ज़मीन ट्रांसफ़र करने पर नई इंक्वायरी शुरू कर दी गई। बहावलपुर सेटेलाइट टाउन में ज़मीन मनपसंद अफराद को ट्रांसफ़र करने का इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला ज़मीन ट्रांसफ़र करवाई। साबिक रुकन कौमी असम्बली बलीगुर रहमान के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई। MPA नज़ीर चौहान को ज़मानत पर रिहाई मिल गई। नज़ीर चौहान ने जहांगीर तरीन ग्रुप से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन पर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ने का शिकवा भी किया।
तहरीक इंसाफ के एमपीए नजीर चौहान को रिहाई का परवाना मिल गया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद राशिद पुलरवान ने 1 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर की जानिब से माफीनामा जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया है कि नजीर चौहान ने उनके मजहबी अकीदे के खिलाफ बयान पर माफी मांग ली है। अदालत नजीर चौहान की जमानत मंजूर कर ले तो कोई एतराज नहीं होगा। नजीर चौहान ने जेल से बाहर आते ही तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इल्जाम लगाया कि जहांगीर तरीन ने उन्हें अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ दिया। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। नजीर चौहान का कहना था कि उनके लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद रहेंगे। जुडिशरी की ताकत अरकान असम्बली को देने से मसाइल पैदा होंगे। गवर्नर पंजाब ने इस्तेकाक बिल पर एतराज़ लगाकर वापस भेजने की वजह बता दी। चौधरी सरवर कहते हैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। स्पीकर पंजाब असम्बली इत्तेहादी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने फ्लैटीज़ होटल में डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई बिल मुस्तरद करना मेरी अपनी राय है, अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करता हूँ। जुडिशरी की ताकत सिर्फ जजेस के पास होनी चाहिए। अरकान असम्बली को जुडिशरी की ताकत देने से मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसी वजह से इस्तेकाक बिल पर एतराज़ लगाकर वापस भेजा। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली सुप्रीम और बाइख्तियार इदारा है, इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। स्पीकर असम्बली के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर बल्दियात व कम्यूनिटी मियाँ महमूद रशीद की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बल्दियाती इदारों के इलेक्शन के हवाले से मुशावरत हुई। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है वफाकी वज़रा की लोकल बॉडीज़ मुशावरती कमेटी में मियाँ महमूद रशीद को भी बतौर रुकन शामिल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था मुशावरती कमेटी में वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा, मोहनस इलाही, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही।